Hey my friends, welcome back to my channel that is Serving Truth, Surbhi. I am Surbhi and आज मैं एक नई टैरो रीडिंग के साथ ऑरेकल कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ दैट इज बेस्ड ऑन योर एलिमेंट्स लाइक वी आर you know made up of five elements, that is earth, fire, water, ether एंड एयर. तो आज उनसे हम मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके जो एलिमेंट्स हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं एलिमेंटल्स की ही अपनी या लाइफ पर्पस रीडिंग या कोई स्पेसिफिक area of your life ke regarding, then you can email me. My email is in the description box. So let's get started. Thank you. So God, what's the message for my audience from their earth element? So let's see. Number 44. This is the card. Now let's see what is the message from your water element. What's the message from water element for my audience? From their water element. Okay, it jumped out. Okay, number 5. Now we'll ask for your air element. Okay, God, what's the message from the air element of my audience? For my audience, message from the air element, please. Message from the air element. 2 more times. Two. Number 38. I'll be explaining. I'm just taking out the card. You can speed this up. YouTube may speed का option, but I have to give it my 100%. So God, what's the message from the fire element of my viewers? From the fire element, what's the message for audience from the fire element? Just 2 more times. Number 42, your prayers are being answered. Okay. God, what's the message from the spirit element? My audience from their spirit element. Number 34, trust in the divine timing. So before moving forward, let me tell you elements का क्या significance होता है. तो अर्थ एलिमेंट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल
for our work, for our stability, for the money, and for the finances, and also your root family. Okay, now moving to second, water element का significance होता है हमारे relationships, हमारे emotions, हमारी emotional health, हमारी emotional healing. Okay, and air element is responsible for our mental energy, mental body, that is movement, that is related to movement, clarity. And air element is also connected to your communication. um, and then fire element is related to your purpose, your drive, your passion, your willpower, your growth in life. Okay, and ether, that is your spiritual body, that is your spiritual area, your spirituality, that is spirit element, or we can say ether element. Okay, that is related to divine, what is the connection you have with the divine. ओके, सो सबसे पहले हम इसकी डिटेल में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले अर्थ में आया है, अर्थ का ही कार्ड आया है 444, दैट इज नंबर 44. You will manifest what you need. Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. तो सबसे पहले अगर मैं आपके अर्थ एलिमेंट की बात करूं, आपका अर्थ एलिमेंट एक्चुअली इज इन गुड कंडीशन, इट इज एक्चुअली इन फाउंडेशन प्रोसेस. और मैं यहाँ पे कुछ लोगों की बिल्कुल मैनिफेस्टेशन फ्रूट, उसका पूरा फ्रूइशन होता देख रही हूँ. कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी जो आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत ब्यूटिफुल कार्ड और प्रॉमिसिंग कार्ड है व्हेन इट कम्स टू आई एम ओके. आई एम फीलिंग यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, but your feminine energy, because you have to at the end receive this manifestation, and receiving energy is of the feminine energy. And right now I'm sensing pain in my left side. That means अगर आपको ये manifestation जो आपने मांगी है, जिसके लिए आपने वर्क किया है, मेहनत की है, अब इसका एंड होता है कि अब मुझे रिसीव करनी है, और रिसीव करने के लिए आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है. आपको देखना होगा, वहाँ पे सवाल पूछना होगा, यहाँ पे बैठा क्या हुआ है, आपकी फेमिनिनिटी में क्या अनवर्दीनेस बैठी हुई है, या फिर आई एम सेंसिंग चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ है. आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को यहाँ पे देखना होगा, चाइल्डहुड अपसेट को यहाँ पे देखना होगा. हो सकता है आपको बचपन में महंगे महंगे खिलौने चाहिए तो और आपको नहीं मिले, तो आपसे हो सकता है वहाँ पे कुछ बिलीफ क्रिएट हो गया कि आई कैन नॉट हैव गुड थिंग्स इन लाइफ. मुझे यहाँ पे चाइल्डहुड बहुत सेंस हो रहा है आपका. तो आपको अगर ये बड़ी मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो, अब आपको रिसीव करनी है, येस. एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि गॉड इज ऑल्सो सेइंग दैट यू डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व दिस. ये जो भी चीज़ है, जो भी मुराद है, जो भी है, ये एक जनरल रीडिंग है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखनी होगी. पर्सनल रीडिंग में हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू. I'm sensing unworthiness here. आपके इनर चाइल्ड में स्पेसिफिकली अनवर्दीनेस बैठी हुई है, जिसको आपको रिलीज़ करना होगा. क्योंकि जब आप वर्दी फील करेंगे इस चीज़ के लिए, जो भी चीज़ है ये, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी फाउंडेशन आपको बिल्ड करनी है, व्हेन यू विल फील वर्दी, यू विल बी एबल टू रिसीव इट. जब वो अपने आप को प्रेजेंट करे आपके सामने, तो आप उस टाइम यस बोल पाएंगे. अगर आपको कुछ रिसीव करने से रोक रहा था अब तक आपकी फाउंडेशन में, मनी में, तो वो यही चीज़ है. एंड व्हाट आई एम एक्चुअली सेंसिंग, गॉड वांट्स टू गिव इट टू यू, कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ बिकॉज नंबर 44 अगर मैं इसे जोड़ दूँ 8 बनेगा. 8 नंबर लाइफ में पहले आपको स्ट्रगल कराता है, आपसे बहुत मेहनत कराता है, बट
उसमें वो लेसन ही ये सिखा रहा होता है आपको दैट वर्क हार्ड इफ यू वांट दिस, बट what I'm sensing right now is you made it. Like अगर आपसे इतना हार्ड वर्क मांगा था, आपने इतना कर दिया. It's like that. So you deserve your manifestation. You just have to tell yourself, tell your inner child that I am worthy. I'm picking up very emotional people here. Very emotional, okay? Oh, ऐसा भी हो सकता है व्हेन यू विल वॉच दिस रीडिंग यू विल गेट इमोशनल कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे चाइल्डहुड में या ओके. लेट्स सी. जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, इट्स लाइक वो गिफ्ट रैप में गॉड ने रैप कर दी है दैट, और वहाँ पे आपका स्टिकर लगा दिया है दैट दिस बिलोंग्स टू दिस पर्सन. गॉड बस आपको वो हैंड ओवर करना चाहते हैं कि दिया. Now, let's move on to next, your emotional element, that is your water element, number 5. Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth. Then let's so take it from there. मैं बदलाव देख रही हूँ आपकी. सबसे पहले तो स्टेबिलिटी आपके अर्थ एलिमेंट में है, लेकिन आपके इमोशंस में मैं चेंज देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं. बी ऑनेस्ट का यहाँ पे मतलब है अपने अंदर अपनी डिज़ायर को मान लेना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए. वहाँ ऑनेस्ट होने की आपको ज़रूरत है. पहले आपको ये बोलना तो होगा अपने अंदर दैट यस दिस इज़ माई डिज़ायर, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ, बी इट लव, be it more money, be it successful career, that I want this, I desire this. It's like suppress करना बंद करो उस चीज़ को, अपनी डिज़ायर को, अपनी जो चीज़ आपको चाहिए, और उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए गॉड से कि मुझे ये चाहिए. एंड पहले एटलीस्ट अपनी डिज़ायर को एक्नॉलेज करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसे कम्युनिकेट करो डिवाइन को कि मुझे ये चीज़ चाहिए. एंड देन गॉड इज़ लाइक देन सी आई विल मेक इट हैपन फॉर यू. विल गो इन डिटेल, हम टैरो से भी देखेंगे. नाउ योर एयर एलिमेंट, नंबर 38. Yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. Your air element is in very healthy situation. मैं यहाँ देख रही हूँ आपके माइंड की आप पे पकड़ नहीं है, आपकी आपके माइंड पे पकड़ है. आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो सबसे पहले. या गॉड इज़ ऑल्सो लाइक यस. और आप इंटेलिजेंट हो, इसलिए आपको आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके गिफ्ट्स, आपकी अबंडेंस ज़रूर मिलेगी. यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. या एंड यू आर वेरी इंटुइटिव. जो बुद्धि से आपके सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड से आप जो रिसीव करते हो ना, जो आइडियाज़, ब्रिलियंट आइडियाज़, वो सच होते हैं. You have very strong air element. बैलेंस बहुत है आपके एयर एलिमेंट में इस टाइम तो है. नाउ आपका फायर एलिमेंट. योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड. Your prayers are being received by the divine. Answers will come soon, although perhaps in forms you didn't expect. तो फायर एलिमेंट आपके पर्पस से जुड़ा होता है, आपकी विल पावर से जुड़ा होता है. इतनी खूबसूरत बात है, इतनी खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड में. पता है क्या, एक फायर होती है कि भस्म कर देने वाली. इसमें फायर तो है, ताकत तो है, इसमें हनुमान जी की एनर्जी है, मगर सरेंडर और डिवोशन है.
वो फायर, वो पैशन डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, वो फायर और पैशन सर्विस के लिए इसने सरेंडर कर रखा है। दैट डिवाइन आई डिजायर यू, ओनली यू, कि मेरी जितनी ताकत है, मेरी जितनी पावर है, मुझे उसे आपकी सेवा में लगाना है, आपके लिए करना है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंदर ले लो उस डोर के, जहाँ मैं आपकी सेवा कर सकूँ। एंड गॉड इज आंसरिंग योर कॉल। या तो आपको वो कॉल आ गई है या आने वाली है, जहाँ आपकी सर्विस को, आपकी इस डिवोशन भरी सर्विस को एक्सेप्ट किया जाएगा। आई एम अगेन वेरी इमोशनल हियर। तलवार है इसके पास वो जज्बा है, पर इसने टेम कर रखा है उसे बैक पे रख रखा है, उसे वेस्ट नहीं कर रहा या कर रही, काटने पीटने के लिए नहीं है। वो तलवार रक्षा के लिए है। इट्स लाइक हम्बल हो जाना अपनी पावर में। इट्स टोटली हनुमान जी एनर्जी, पावर बहुत मैसिव, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने किस चीज़ के लिए किया? सेवा के लिए। दैट इज़ फॉर सर्विस। कि मेरी जितनी फायर है मुझ में, मेरे अंदर जितना पैशन है, मेरे अंदर जितनी विलिंग पावर है, मैंने वो गॉड की सेवा में लगानी है। और यहाँ प्रार्थना चल रही है इसके मन में कि प्लीज़ मुझे किसी काम में लगा लें आप, जो आपका हो। एंड आंसर इसी में है, नंबर 42, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। इट्स अ yes from God that you will serve me. God will recruit you. Now, your ether element, your spiritual world. Number 34, trust in divine purpose. डिवाइन आ गए, डिवाइन से ही जुड़ा होता है ईथर। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। सबसे बहुत जुड़े हुए हो आप इस वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में आप बहुत जुड़े हुए हो। और यहाँ ना ट्रस्ट है आपके अंदर, आपके भीतर बहुत ट्रस्ट है, और यही ट्रस्ट का जवाब आपको यहाँ पे मिल रहा है। और वो जवाब ये मिल रहा है कि जो भी चल रहा है इट हैज़ अ डिवाइन मीनिंग। आप अपनी जर्नी पे हो, सोल ग्रोथ की पे, और आपकी सोल ग्रो हो भी रही है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। जो भी, अगर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं ना, एक दिख रहा है आपको हार्मनी, उसमें भी भगवान का हाथ है। एक डिस्कॉर्ड्स, केओस, डिसहार्मनी जो आपको लग रही है, उसमें भी भगवान का ही हाथ है। इट्स लाइक दैट इज ऑल्सो डिवाइन अलाइनमेंट। ओके, डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अलाइनमेंट। और आप बहुत सधे हुए हो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। 7 नंबर की एनर्जी आई है, 7 है केतु, 7 है गणेशा, 7 है अवेयरनेस, और वहाँ पे वो आई है। दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो अब हम, ये थे आपके मेन मैसेजेस। अब हम इसमें डीपर जाएंगे और आपके टैरो से देखेंगे। गॉड, व्हाट्स द मैसेज फॉर माय ऑडियंस फॉर द अर्थ एलिमेंट? प्लीज provide deeper insight. Let's get deeper for the earth element of my audience. Okay, तो जो कार्ड आया है that is the lovers. I can't show it because it has that picture. Okay, the lovers कार्ड आया है यहाँ पे, blessed. Okay, यहाँ भी एंजल है पहले वाले कार्ड में, इसमें भी है। Let me take all. God, what's the
for water element, for my audience, message in the water element. Yeah, you're going through the change, मैंने बोला था, और यहाँ टावर का कार्ड आया आपके इमोशंस में. God, what's the message for the air element of my audience, for their air element? Wow, Queen of Cups. God, what's the message for the fire element, my audience? Message from the fire element of my audience for them. Thank you. Temperance. Balance. Okay. Hey God, what's the message for the ether element, from the ether element? Okay. My audience. Strength. Yeah. So सबसे पहली बात, there is very much angelic, like spiritual support, whatever you are going through right now. Wow. तो जो नंबर 44 अर्थ एलिमेंट पे हमने देखा था, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड. ओके, और अर्थ एलिमेंट ही मैनिफेस्टेशन के बारे में होता है. बहुत अलाइन चल रहा है इस टाइम पे आपका. तो व्हाट वी हैव रिसीव्ड इज द लवर्स. It has like keywords of love, harmony, union, partnership, a choice, the strength of two together. Okay. What I'm getting is, in your earth element, there is some sort of 2 की एनर्जी, 11 नंबर की एनर्जी, यानी एक ये कि हम टीम हैं, हम पार्टनर्स हैं. या तो आप किसी के साथ टीम में काम कर रहे हो. ओके, आपके अर्थ एलिमेंट में आप जो बिल्ड कर रहे हो, दैट इज लाइक आप अकेले नहीं हो. दैट इज समथिंग आई एम पिकिंग. या तो स्पिरिचुअल सपोर्ट है, दैट एंजेलिक सपोर्ट, या आप किसी टीम में काम कर रहे हो एंड दैट टीम इज सपोर्टिव, या फिर आपने गॉड के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, आप उसमें काम कर रहे हो. और जितना आप अपने अर्थ एलिमेंट में प्यार से काम लोगे, उतना आपका काम होगा. यानी अपने काम में डिवोशन मिला देना. दैट इज समथिंग. उतनी जल्दी आपकी वो जो मैंने आपको बताई थी कि आपकी फेमिनिन साइड को और इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है. डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ कि तुझसे ये नहीं हुआ, तेरी इतनी उम्र हो गई है, तुझसे अब तक पैसे नहीं कमाए गए, तुझसे अब तक यू नो तुझे अब तक ये नहीं होता, तुझे ये नहीं आता, तुझ अब तक घर नहीं खरीदा अपना. इस नैरेटिव को शिफ्ट करने की ज़रूरत है. बी कंपैशनेट विद योरसेल्फ. रिमेंबर दैट टाइम कि आपकी ट्रजेक्टरी दूसरे लोगों से कैसी रही है. कंपैरिजन मत करो, जजमेंट्स मत करो. इस टाइम it is the time to actually accept that part, love that part, और उसे compassion की ज़रूरत है. उतनी जल्दी वो जो आपका सपना है वो पूरा होगा. Please don't be like the world with that part. That is what I am getting. जितना प्यार से काम लोगे आप अपने साथ यहाँ पे अपनी फाउंडेशन में, उतनी जल्दी हील होगी. यू नीड इमोशनल कनेक्शन. आप जितना इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने पे काम करोगे,
अबैंडनमेंट आपका हील हो जाएगा, और वो जो गैप है आपकी रियलिटी में, आपकी मैनिफेस्टेशन या अपनी फाउंडेशन या फिर आपकी फैमिली में दिक्कत है, अगर फैमिली में ऐसा लगता है ना रिश्ते बिखरे हुए हैं, दैट मीन्स इमोशनल अबैंडनमेंट का वूंड है वहाँ पे, एंड इट विल गेट हील्ड, और उससे आपकी अर्थ रियलिटी मजबूत होगी। मटीरियलिस्टिक चीज़ें अच्छी चाहिए तो आपको अपनी इमोशनल रियलिटी पे काम करना है, ओके? इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं आप, तो आपको अपने इमोशनल वर्ल्ड की टेक केयर करनी होगी, ओके? सो या लेट्स गो टू नंबर 5, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मैंने कहा था आपके इमोशंस में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर ऐसी दिख रही हैं जो आपको लग रहा है दे आर वेरी पेनफुल। टावर का कार्ड आया है। टावर से यहाँ मतलब है किसी ओल्ड चीज़ का डिस्ट्रक्शन चल रहा है आपके इमोशंस में। जो चीज़ आपको लगता था मेरे काम की है या उससे बहुत अटैचमेंट था, हो सकता है वो छूट भी गई हो आपकी, क्योंकि स्नेक ईयर था पिछला साल नंबर 9 का, ठीक है? तो हो सकता है आप हताश भी हो इस समय। रिसेंटली आपने किसी चीज़ को अचीव किया, कुछ है जो आपसे छूट गया, जो आपको आपने जो पहले तो चला आपके साथ कोई चीज़, कोई काम, कोई इंसान, लेकिन नाउ आपको उसे छोड़ना पड़ा। यू हैड टू लेट इट गो। उस पूरे कैसल को क्रम्बल होना पड़ा, ओके? लेकिन यहाँ आपसे आपको खुद गॉड आपको चाह रहे ऑनेस्ट कि वो चीज़ अटैचमेंट है तुम्हारा या तुम्हारे लिए अलाइन चीज़ है। बस आपको ये क्वेश्चन करना है एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इस उस चीज़ को क्रम्बल, वो अनरियल था चीज़, वो अनरियल थी, इसलिए उसको रिलीज़ होना पड़ा आपकी रियलिटी से। नाउ आपका एयर एलिमेंट जो हमने देखा था नंबर 38, वहाँ पे आया क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, कंपैशन, कंफर्ट, काम, नर्चरिंग, हीलिंग, इमोशनली स्टेबल, इंट्यूटिव एंड केयरिंग। बैलेंस, एयर एंड वाटर। आपके अंदर बहुत डिटैचमेंट है। आपके माइंड में ना आप क्लिंगी नहीं हो मेंटली। एक चीज़ के पीछे, एक विचार के पीछे आप पागल नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, अपने मेंटल स्पेस में, ओके? आपकी किसी और चीज़ पे नज़र है मेंटली। कुछ है आपके पास ऐसा जिसे आप ज़्यादा वक्त देना, तवज्जो देना, ज़्यादा अहमियत देना पसंद करते हैं या करती हैं। कुछ है आपके पास ऐसा प्रेशियस जो आपको बचाए रखता है अपने अटैचमेंट में जाने से। अब यहाँ आप कहोगे हाँ तो तुमने अटैचमेंट बताया, लिसन, ये इमोशनल वर्ल्ड की बात की मैंने। इमोशनल अटैचमेंट इज़ डिफरेंट एंड मेंटल अटैचमेंट इज़ डिफरेंट। मेंटल अटैचमेंट आइडियाज से, थॉट से होता है। इमोशनल अटैचमेंट स्पेसिफिकली पर्सन से चल रहा होता है। यहाँ मुझे पर्सन की एनर्जी ज़्यादा पिक हुई है इमोशनली में, स्पेसिफिकली मैन की एनर्जी इफ़ यू आर अ वुमन। लेकिन मेंटली यू आर वेरी बैलेंस्ड पर्सन। आपके अंदर ऑब्जर्व करने की शक्ति है। इट्स लाइक ऑब्जर्व करने की। और अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे मेरा दिमाग एक जगह नहीं बैठता, आपके इनर चाइल्ड में है वो शक्ति। आप घंटों बहुत बैलेंस्ड हो। आपके या तो ये आपके सबकॉन्शियस में बैठी माइंड की एनर्जी है कि यू कैन मेडिटेट,
So now let's go to your fire element. That was your prayers are being answered. मैंने यहाँ आपसे कहा था बैलेंस में है इसके, ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे टेम्परेंस में भी बैलेंस की एनर्जी होती है। ये 2 कप्स हैं यहाँ। ओके, हारमनी, आपकी जो फायर है ना हारमनी में, इट्स लाइक मुझे पता है मेरी हाई एनर्जी है और मुझे कहाँ लगानी है, मुझे गॉड के काम में लगानी है। इट्स लाइक यू आर वेरी बैलेंस्ड पर्सन इन दैट वे। और यहाँ पे कीवर्ड भी पर्पस है, फाइंडिंग मीनिंग। कहीं ना कहीं आप वो लोग हो जिन्हें अपना पर्पस पता है। आपको पता है अपना पर्पस, और आप 100 सुनार की 1 लुहार की, या जो भी ये कहावत है, आप एक मौके का इंतज़ार कर रहे हो या आप उस चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो। आप वो हो जो बड़े काम के लिए है। यहाँ लालच नहीं है। कौन ऐसा विचार रखता है, कौन ऐसा विचार रखता है कि मैंने डिवाइन को सर्व करना है? कितने 0.001% लोग भी नहीं होंगे, उनसे भी कम होंगे जिसकी ऐसी सोच है। कौन करता है वरना ऐसे? Someone very divine. It takes a very, very deeply divine soul to make that decision कि मैंने ये करना है। And now, स्ट्रेंथ कार्ड आया आपके ईथर में, दैट सेज करेज, पैशंस, subtle power, persuasion, influence, inner strength, focus, compassion. You know, आपके अंदर मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी साधना देख रही हूँ। ओके, एंड इफ यू आर नॉट दैट पर्सन जो डिसिप्लिन नहीं है, मैं आपकी सोल डिजाइन देख सकती हूँ। इसका मतलब मैं आपका सच दिखा रही हूँ आपको, आप ये हो वो नहीं हो जो आपने माइंड में बना रखा है। इट्स लाइक स्पिरिचुअली यू आर दैट पर्सन। आप चाहो तो दूसरे लोगों जैसे हो सकते हो, अब्यूजिव, ईगोइस्टिक, दिस एंड दैट, लेकिन आपने ना अपनी पावर को टेम कर रखा है कि शांत रहे, अभी शांत रहे। There will be my time and I will do it in my own way. आप उस एनर्जी को खराब नहीं करोगे, आप उसे बैलेंस में डालकर उसे अमृत बना कर दोगे। इट्स लाइक दैट। एनर्जी है, हम सबको मिली है। कुछ लोग उससे डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ लोग उससे कुछ बिल्ड करना चाहते हैं और गिफ्ट देना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं दुनिया को। ओके, मुझे सिर्फ एक जगह इम्बैलेंस नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बस इमोशनल स्पेस में दिख रहा है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड, आपकी फेमिनिनिटी हीलिंग मांग रही है। वरना मैं इतना डिसिप्लिन देख रही हूँ आपके अंदर, आपकी एनर्जी के अंदर तपस्या वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि मेरा फोकस इस पे है, इसी पे रहेगा। कोई चीज़ हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है, गॉड हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, जनरल रीडिंग है आपको अपने हिसाब से, या आप किसी की सिर्फ माँ हो सकती हैं, आप इतनी अच्छी माँ बन रही हैं किसी की, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। आपको अपनी पावर का अंदाज़ा है, एंड बट यू आर लाइक, आप अपनी ईगो में शिफ्ट होके ये नहीं कहती कि गुस्सा भी आए तो कि अब तो मैं इसे बता दूंगी। यू आर लाइक, मैं हायर ट्रूथ जानती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूँगी, मैं ट्रूथ के अकॉर्डिंग ही चलूँगी, मैं कंपैशन के अकॉर्डिंग ही चलूँगी, गॉड के अकॉर्डिंग ही चलूँगी, जो भी है। आपका भी मन करता है कि ईगो को जवाब ईगो से दूँ, बट
You have so much self control. और इट्स नॉट लाइक कंट्रोल है, इट इज लाइक मुझे सच पता है, मेरे पास कुछ इससे इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं अपनी एनर्जी एंगर में, ईगो में, फियर में, बकवास में नहीं डालूंगी। यू वॉन्ट टू love God through that energy by living your purpose. You're very humble, you're very surrendered. I want to go deeper in your emotional space. यहाँ पे टावर का कार्ड आया, क्या है ये? God, what is this? Please provide depth for this emotional water element, please. What I am also picking is, जैसे किसी ने बातें बनाई हो आपके बारे में, ये तो ऐसे है वैसे है, जजमेंट्स आपने बहुत देखे लोगों के, आपने उन्हें भी जवाब नहीं दिया, बिकॉज यू नो योर ट्रूथ, यू नो योर डिवाइन लीनेज, कि मैं कहाँ से आती हूँ। ओके गॉड, प्लीज प्रोवाइड दैट फॉर दिस वाटर एलिमेंट। क्या चल रहा है यहाँ पे वाटर एलिमेंट में? सो व्हाट आई एम सीइंग इज, ये अर्थ से ही रिलेटेड है। आपके वाटर एलिमेंट में ना बहुत सारा एंगर बैठा हुआ है, आपके अंदर एंगर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपका वाटर एलिमेंट को वो ड्राई अप करता है। आपको ये देखने की ज़रूरत है मैं किन किन चीज़ों से गुस्सा हूँ, क्या चीज़ें मुझे गुस्सा करती हैं, कौन से ऐसे सपने हैं मेरे जो पूरे नहीं हुए जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। आपने कहीं एंगर होल्ड कर रखा है और वो एंगर आपके वाटर एलिमेंट को ड्राई कर रहा है, जबकि वाटर एलिमेंट इज़ लाइक फ्लोइंग। अगर आप अपने इमोशनल अबैंडनमेंट पे काम करते हैं या करती हैं, तो आपके वाटर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप उसी की राह पे हैं। सो लेट्स सी एनी मोर मैसेज फॉर वाटर एलिमेंट। Thank you so much. Embrace this magical moment. यहाँ पानी निकल रहा है फाउंटेन से. It's more like a solution. नंबर 11, बैलेंस लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अपना वाटर एलिमेंट सही करने की ज़रूरत है. यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड. मैंने आपसे क्या कहा था? अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स थी जो कभी पूरी नहीं हुई, जिनकी वजह से आपके अंदर एंगर भरा हुआ है. और यहाँ क्या लिख रहा है? अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड. अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल होने का मौका दो. खुद को दो या भगवान को दो या कोई आपके लिए आपके परिवार में है जो आपकी विशेस पूरी करना चाहते हैं, या कोई मैस्कुलिन फिगर है जो आपकी पूरी करना चाहते हैं ख्वाहिशें, उन्हें अलाउ करो. यानी अपनी फेमिनिटी हील करो, वही अलाउ कर सकती है. ठीक है. और मैं यहाँ पे आपकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस गुस्से को हील करके रिस्टोर करके, आपकी मनी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. अगर आप अपना वाटर एलिमेंट बैलेंस करते हो, अपने उन डिज़ायर्स, उन विशेस का जो गुस्सा है, आप उसे रिलीज़ कर दो, हील कर दो, तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी और आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी है. Yeah, in that God is with you to help you move through this. Yes, आप वो हो जिसकी बचपन में या कभी भी आपकी मर्जी का आपको नहीं मिला, या तो किसी ने थोपा या आपको कंट्रोल किया. या आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है,
आपको वो रास्ता ढूंढना है जिससे आपकी इच्छाएं इस जन्म में पूरी हो सकें। दैट्स इट। कि इसने कह दिया ये कर लो, उसने कह दिया वो कर दो, उनकी ही चलेगी, और आप अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस करते गए जिससे आपके अंदर एंगर बढ़ता चला गया। यहाँ एंगर है और आपको उसी एंगर को प्रोसेस करने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है वो कौन कौन लोग थे जिनकी वजह से आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई, और आपको वहाँ पे खुद को कंपैशन देना होगा, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। अब आप कंपैशन दे सकते हैं। जो एडल्ट आपके लिए मौजूद नहीं थे, अब वो एडल्ट, वो पेरेंट आप खुद के लिए बन सकते हैं। ओके, एंड देयर इज सो मच, देयर इज सो मच लव फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन रेल। बहुत सारे एंजल्स हैं इस स्प्रेड में, बहुत सारे। इट्स लाइक, एंड they're saying that you're extremely worthy child of God, extremely worthy. So ये थी आज की रीडिंग। What a reading! It's so amazing. पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर रीडिंग। मुझे ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी। रिलीज योर अनवर्दीनेस। इट्स लाइक आपके लिए बहुत बड़ा किंगडम होगा जो आपके लिए सफिशिएंट होगा, सिर्फ आपके लिए। Allow yourself to be loved by God, adored by God. You are lovable. You are lovable. It was a beautiful transformation, okay? And it was a beautiful, beautiful transmission from my space to yours. And I hope आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। इंसाइट्स मिली हैं, नोट्स बना सकते हैं। And thank you so much for watching. And yeah, you can book your personal elemental reading with me as well. Thank you so much. Bye.